بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اور تمام اصحاب کرام پہ۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ہوپ فلی سب اپنے گھروں میں خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان اور عافیت میں رکھے، ڈھیر ساری کامیابیاں دے، بری نظر سے بچائے، سب کی مشکلات اللہ تعالیٰ آسان کرے، آمین ثم آمین۔ اور اس وقت تقریباً 7:45 ہونے والے ہیں اور باس نکلنے والے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں مل رہا، تو آج پھر میں جلدی سے جا کے گاڑی میں ہی پکڑتی ہوں اور کوئی چھوٹی سی بات کرتی ہوں۔ ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ آج آپ نے پھر مجھے گاڑی میں پکڑ لیا۔ ٹائم ہی نہیں مل رہا تو مجھے بس پھر اب یہی مناسب لگا کہ کم از کم میں ایسے 5 منٹ لے لوں۔ صحیح ہے۔ رات کو بھی نہیں ہو سکا تو یہ فی الحال آسان حل لگا ہے۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک، اللہ کا شکر۔ آپ کی پچھلے کچھ دن سے طبیعت سیٹ نہیں چل رہی؟ ہاں بس اینٹی بایوٹک لے لی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ صحت کا دے، بری شکر، نظر سے بچائے، اللہ کی امان میں الحمدللہ، رہیں۔ آمین۔ ڈھیر ساری دعائیں ہیں آپ کی اچھی صحت کے لیے۔ اچھا اللہ باس، سب کو صحت اور آمین ثم آمین، تندرستی سب کے عطا گھروں میں فرمائے، سکون رکھے، صحت کے ساتھ اللہ کی امان میں رہیں۔ باس آج کیا بتائیں گے آپ؟ آج میں اے آئی کے بارے میں بتاؤں گا کہ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ ابھی پاکستان میں اس طریقے سے اس کا استعمال شروع نہیں ہوا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ ایپس تو آ گئی ہیں، چائنا نے ڈیپ سیک بنائی ہے، چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ سب سے اچھی ہے، ویسے تو امریکن ہے، لیکن ہمارے ادھر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ریکارڈ یا لاز کم از کم وہ پورے کے پورے اپلوڈ نہیں ہوئے یا پبلک نہیں ہیں، اور جب تک وہ اپلوڈ نہیں ہوں گے اے آئی لیگل سسٹم میں استعمال نہیں ہو سکتی اس طریقے سے، کیونکہ ہم جب ججمنٹ ریسرچ کرنی ہے نا، ہمارا بیسک کام لائرز کا ریسرچ کرنا ہے پہلے، تو ریسرچ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک کنونشنل طریقہ ہے کہ جو اینول ڈائجسٹ بنتے ہیں، پہلے تو منتھلی جرنلز آتے ہیں وہ پڑھیں، اس کے بعد پھر اینول ڈائجسٹ ہوتے ہیں پچھلے کے لیے وہ پڑھیں، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب آج کل جو ویب سائٹس پہ سپریم کورٹ ہائی کورٹس کی ویب سائٹس پہ لیٹسٹ ججمنٹس آ جاتی ہیں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو آسان ترین طریقہ اب ایک یہ آ گیا تھا کہ ایک پاکستان لا سائٹ ہے اور ڈیفرنٹ لا سائٹس ہیں، ان کو ہم سبسکرائب کر کے تو ان پہ ریسرچ کرتے ہیں، یہ ایک ڈیجیٹل طریقہ ہے، تو لیکن اب وہ پبلک نہیں ہے اس طریقے سے کہ اس کو اے آئی سرچ کر سکے۔ انڈیا میں کافی حد تک ہے اور امریکہ اور یو کے میں بہت ہے۔ اگر ہم اے آئی میں ایک سبجیکٹ کویسچن ڈالیں گے تو وہ پاکستانی ججمنٹس وہ اپنے آپ سے بنا کے دے دیتا ہے اور اکثر غلط ہوتی ہیں، 99% غلط ہوتی ہیں، لیکن انڈیا کی جو ججمنٹس وہ کوٹ کرتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتی ہیں، اور یو کے کی ججمنٹس جو وہ کوٹ کرتی ہے اے آئی وہ بالکل صحیح ہوتی ہے۔ اب میں نے 2-3 دفعہ اس طرح ریسرچ کی اے آئی کے ذریعے، تو انڈین اور انگلش ججمنٹس بہت اچھی مجھے مل گئیں اور بالکل جینون مل گئیں، وہ بھی اویلیبل ادروائز بھی نیٹ پہ پھر ہیں، ہاؤس آف لارڈس کی ویب سائٹ پہ ہیں، اور تو میرا کہنے کا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تک ہم اپنا ڈیٹا اپلوڈ نہیں کریں گے ہمارا سسٹم اے آئی پہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح میڈیکل ہے، کوئی اور بھی ہے، اب میتھمیٹکس کے یس سر اے آئی، اب یہ جو میتھمیٹکس کے کویسچنز ہیں وہ ہم ایکویشنز اس میں لکھیں ایسے ایسے وہ حل بتا دیتے ہیں اے آئی، وہ اس لیے کہ وہ میتھمیٹکس اوپن سبجیکٹ ہے، اور وہ اوپن سبجیکٹ ساری ویب سائٹس پہ موجود ہے، انگلش یو کے ہر جگہ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، وہ آپ کو کریکٹ آنسر دے دیتا ہے۔ اب میڈیکل اس طریقے سے اوپن نہیں ہے، اور لیگل سسٹم جو بھی پروفیشنل ہیں وہ اس طریقے سے اوپن نہیں ہے، تو وہ اپلوڈ ہوں گے تو پھر ہمارا سسٹم چلے گا اے آئی پہ۔ اسی طریقے سے ہم سنتے ہیں بار بار کہ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جی اے آئی کا استعمال کریں کیسز فکسیشن میں۔ اب کیسز اپلوڈ ہوں گے ویب سائٹ پہ تو وہ ویب سائٹ اوپن ہوگی تو پھر ہی اے آئی کام کر سکے گی نا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈیٹا تو فیڈ کرنا ہے انسانوں نے۔ اب ریسنٹلی مجھے 2 کیسز میں ایکسپیرینس ہوا کہ کیس اپلوڈ ہی غلط ہوئے ہیں۔ اب ایک بیل کا کیس تھا، لاہور سے ایک وکیل صاحب آئے تو ان کے پاس فائل نہیں تھی کہ جی نیا کیس ہے، تو مجھے پولیس نے صرف ایف آئی آر بتائی ہے، میں کمپلیننٹ کی طرف سے ہوں،
तो मैं हाई कोर्ट की भी फाइल नहीं लेके आया। एनीवे, अब जब मैंने उससे नंबर पूछा, नंबर भी नहीं उसको पता था। मैंने लिस्ट देख के नंबर देखा, नंबर से फिर हमने उसको फ़ाइल डाउनलोड की जब, तो वो फ़ाइल फैमिली केस की थी। अच्छा, फ़ाइल गलत अपलोड हुई हुई थी। इसी तरीके से एक और केस में मुझे एक वकील साहब ने कहा कि जी मुझे फ़ाइल चाहिए। मैंने जल्दी से वो फ़ाइल डाउनलोड की, केस का नंबर 2025 की जो फाइल्स हैं, जो हम लेटेस्ट फाइलिंग कर रहे हैं, वो अपलोड हो जाती हैं। वो जब मैंने वो उसको भेज दी मैंने, तो जब उसने देखा, उसने कहा सर ये तो मेरा केस ही नहीं है। वो फिर मेरे पास आ गया। फिर हमने 3-4 दफ़ा वो इसको देखा, तो वो फाइल जो थी वो नंबर वही आ रहा है, लेकिन फ़ाइल अपलोड गलत हुई हुई है। तो अब ये जब तक वो सिस्टम प्रॉपरली अपलोड नहीं होंगी चीज़ें, तो वो एआई बेचारी क्या करेगी? वो क्या करे अब अगर फाइल्स अपलोड गलत हुई होंगी, तो एआई को हम डालेंगे कि जी ये वाली फाइल, मतलब इस कैटेगरी के केसेस आप लिस्ट करें। तो अब वो केस तो लिस्ट ही नहीं होगा, जो हमारा वाला है वो उसकी कैटेगरी नहीं होगी। तो ऐसी ही बात है ना, कुकिंग में मसाले गलत इस्तेमाल करो तो खाना कैसे अच्छा बनेगा। क्योंकि अब सामने नज़र आ रहा है कि केस कोई और है, बट अपलोड फाइल जो हुई है वो कुछ और है। तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पहले हम लोग खुद ट्रेंड हों, उसके बाद फिर एआई का इस्तेमाल हो। तो एक जज साहब ने तो वो एआई पे, एक रेंट का केस था, तो उसमें उन्होंने 25 सफ़े एआई पे लिख दिए। और बाद में पता ये चला, बल्कि उसी में लिखा हुआ जजमेंट जब पढ़ी, तो कि जी वो फलां यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, उसने आर्टिकल लिख के दिया जज साहब को, तो जज साहब ने जजमेंट ही छाप देता। और जजमेंट जो असल है वो एक पैरे की है कि हमने केस पढ़ लिया, तो वो जजमेंट हाई कोर्ट की सही है। तरक्की का भी इस्तेमाल, सही तो इस्तेमाल वो सही इस्तेमाल ज़रूरी है ना। वो हम कहते हैं ना कि जो भी चीज़ है, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। कहने लगी थी। तो हम नकल करनी है, हमने एआई खुद नहीं बनाई, हमें नकल करनी है, लेकिन हमें अकल की ज़रूरत है। सही है, ठीक तो इसलिए एआई पे अभी बेतहाशा जो है वो डिपेंड पाकिस्तान में कम से कम हम नहीं कर सकते। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यूज़फुल है एआई, बहुत यूज़फुल है, लेकिन जब तक हमारे सिस्टम सारे डाटा अपलोड नहीं हो जाएगा वेबसाइट्स पे, उस वक्त तक एआई हमारे लिए उस तरह यूज़फुल नहीं होगी। इसको एज ए हेल्पिंग हैंड लें, टोटली इस पे डिपेंड करके आप अपना काम नहीं कर सकते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसे गाड़ियाँ आई हुई हैं टोटली ऑटोमेटिक हैं, टोटली ऑटोमेटिक हैं जी, पार्क भी हो जाती हैं और ड्राइव भी, लेकिन वो अभी हमारी सड़कों पे हर जगह पे कामयाब, हमारी सड़क पे वो सिस्टम ही नहीं लगा हुआ कि उसको वो प्रॉपरली गाइड कर सके। तो उसके लिए पहले हमें अपने रास्ते उस तरह करने हमारी इवन मोटरवेज जो हैं वो स्मार्ट लिख तो दिया है उस पर, लेकिन बोर्ड्स लगा दिए हैं, लेकिन उन बोर्ड्स पे आई कुछ नहीं आगे, और हमारी प्रॉपर लेन्स नहीं मार्क। वही बात है ना कि पहले हम अपने रास्ते खुद साफ करें, फिर उसके बाद आगे की बात करें। सारा कुछ दूसरे के कंधे पे बैठ के ऑटोमेटिक गाड़ी भी है, उसको स्टीयरिंग तो आपके हाथ में है ना। जी बिल्कुल सही है। तो बॉस ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना टाइम दे दिया। अब आप लेट हो रहे होंगे, थैंक यू वेरी मच। आपको पार्किंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अल्लाह की मान में खैर से जाएं, खैर से आएं, ढेर सारी दुआएं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। वाह क्या इत्तेफाक है, आप किधर से आ गई हो? मैं लियाकत के साथ कुछ लेनी थी चीज़ें। छापा अच्छा, अब यहाँ पे और भी आए हैं गेट आउट। अच्छा, कौन है? रबिया जो यहाँ पे रहते हैं वो? हाँ, वो यहीं रहते हैं। मैं तो आपको जानती हूँ, मेरे ख्याल मैं उनको नहीं जानती हूँ। मैं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये कोई अपना अपना बंदा लग रहा है, तो पता चला छापा मारा। हाँ हाँ, नहीं मैं आपको नहीं, फिर फारूक भाई को देख के मैं कहती कोई अपना अपना बंदा लग रहा है, तो फिर पता चला ये अपने ही बंदे हैं। यही बंदे हैं। चलो, लियाकत, मैं लियाकत के साथ हूँ, तो चलो अब मिलके करते हैं शॉपिंग। हम यहाँ से कुछ सब्ज़ी देखने लगे हैं। चलो पहले चेक करते हैं, ये कुछ नींबू अच्छा मिल जाए। वो फारूक और लियाकत इकट्ठे हो गए हैं, नौरीन और मैं इकट्ठे हो गए हैं। दूध लेना है, वो जो पाउडर में होता है ना, उसको पानी में घोल देते हैं। हाँ हाँ, तो वो भी मिलता है ना, मिल्क भी मिलता है। हाँ नहीं, वो मुझे अगर छोटी साशे में मिल जाए ना। साशे का मुझे नहीं पता, वो मिल जाए। आ जाओ इधर से आ जाओ। और साथ में ना क्या लेना है? हमें गॉसिप का मौका मिल गया यहाँ पे। हमने दोनों को कर दिए, दोनों हजरात अलग कर दिए, और ख़ुद हम अपनी गॉसिप में इत्तेफाक, हसीन इत्तेफाक है। ये अच्छा चलो मैं आपको बताती हूँ।
शॉपिंग कंप्लीट हो गई है जी बिला वजह की बिला वजह की? फालतू चीज़ें तो नहीं ली? हो गई ना फालतू चीज़ें की। हाँ, बड़े स्टोर में आने का यही होता है, फालतू चीज़ें ले लेते हैं साथ। हाँ, चलो हमारी गपशप हो गई है, हमने गॉसिप में ज़्यादा टाइम कर लिया है। शॉपिंग करने का भी मज़ा आता है ना ऐसे। मज़ा आता है, शुगर शुगर चल रहा होता है। खाना यहाँ पे हमने दिया था जूस का ऑर्डर, ये हमने नहीं पीना था कुछ भी, हमने भाई से कहा हमें फ्रेश मार्गरीटा बना के दो, 4 मार्गरीटा का हमने ऑर्डर दिया। हमारा मिंट मार्गरीटा रेडी हो गया था, अब हम इंजॉय करते हैं। ये अब हम इम्तियाज़ की पार्किंग में आ गए, अपनी अपनी हम गाड़ी ढूंढेंगे। ये पीछे था ना नज़र। हाँ, ये अब वो हो गई है स्लश जोन सी है, अब ये ज़रा इसका मेल्ट होने का हम इंतज़ार करेंगे, फिर ये होगा। और अपनी गाड़ी ढूंढो, आपको अपनी गाड़ी मिल रही है? मुझे तो नज़र आ गई। आपको कहाँ नज़र आई? वो रही। मुझे अपनी गाड़ी नज़र नहीं आई, अभी नज़र आ जाएगी। लियाकत मुझे देखेगा ना, वो खुद ही आवाज़ दे देगा, आप कहाँ जा रही हैं, गलत गाड़ी पे जा रही हैं, अपनी गाड़ी पे आए। बाय बाय, अच्छा लगा, अच्छा लगा। चलो अच्छा टाइम, अपना अपना रास्ता, आगे पीछे गाड़ियाँ। हाँ। अल्लाह हाफिज़। मैं बाहर आ गई हूँ, सोचा थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ क्योंकि मुझे वेट करना है। जूनियर बॉस की कॉल आ गई कि वो आ रहे हैं, पहुँचने वाले हैं। मैं कहा चलो गेट खोल देती हूँ और अपने व्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। अम्मी भी गई हुई हैं, साथ गई, उन्होंने एफेड गई हुई थी अपनी पुरानी बेल्जियम की फ्रेंड से मिलने। वो अब हम उनको आपी जी बोलते हैं, वो बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, बहुत बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनके लिए आसानी और खैर का मामला करे, तमाम बीमारों को अल्लाह ताला सेहत अता करे, आमीन सुम आमीन। आज बड़ा सैड सा था, मैंने एक चैनल पे जो उमर बच्चे की डेथ हुई है, छोटा बच्चा, उसका प्रोग्राम था, उसको देख के, उसकी पुरानी बातें सुन के, उसके फादर चाचू हैं तो मामू बच्चा चाचू बोलता था, उनका बड़ा दुख हुआ है, इतना दुख हुआ है, आज भी मैं इतना रोई हूँ ना उस पर, बड़ा हमारे दिल पे हाथ पड़ा हुआ है। उसकी माँ का क्या हाल होगा। बाप इतने सब्र से बात कर रहा था, दानियाल भाई इतने सब्र से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह हमें हौसला और सब्र दे, अल्लाह ताला उस ख़ानदान को हौसला और सब्र दे। वाकई उसके दोनों भाइयों को भी अल्लाह ताला सब्र दे। बड़ा दिल दुखी है, बहुत दिल दुखी है, आंखें अपनी भी दुख गई हैं रो रो के, हमारा ये हाल है। मैं तो बार बार सोचती हूँ उस माँ का क्या हाल होगा। अल्लाह ताला सब्र दे देते हैं लेकिन भूलता नहीं है, जाने वाले कहाँ पे भूले जाते हैं। हमारे गज़ा के बच्चों के भी जो दुनिया से रुखसत हुए, उनके वालिदैन को भी अल्लाह ताला सब्र दे, उनके लिए रहम करे। हमारे कश्मीर के बच्चे जो इस तरह मारे गए हैं बेकसूर, उनके लिए भी अल्लाह ताला उनके वालिदैन के लिए सब्र का मामला करे। उन सब माओं के ऑफ कोर्स बाप के दिल भी दुखते हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं कहती कि बाप के साथ कोई मुकाबला नहीं है, बिल्कुल वालिदैन बोल लेते हैं, उनके साथ क्या मुकाबला किसी का। अल्लाह ताला रहम करे, आसानी करे, आमीन सुम आमीन। ये बच्चे जन्नत के फूल हैं, जन्नत के बागों में होंगे, ये तो खुशी के साथ जन्नत के बागों में होंगे। माँ बाप के लिए जन्नत की टिकटें हैं ये। खुशकिस्मत माँ बाप होते हैं जिनके ऐसे बच्चे दुनिया से जाते हैं और फिर वो बच्चे अपने माँ बाप का इंतज़ार करते हैं जन्नत में, उनको जन्नत में ले जाने का ज़रिया बनते हैं। हम अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ रखे, चलता फिरता रखे, अपना आप संभालने काबिल रहें, और हमें भी अल्लाह ताला हिम्मत दे, सेहत दे, हमारी ज़िंदगियों को हमारे बच्चों पे आजमाइश ना बनाए। हमारे बच्चों को अल्लाह ताला ढेर सारी कामयाबियाँ दे, उनके लिए ज़िंदगी के हर मामलात आसान करे।
جو فیصلے ان کے حق میں بہتر ہیں اللہ تعالیٰ وہ ان کے لیے کرے، ان کے نصیب بہت اچھے کرے. جن بچوں کی شادیاں ہونی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھے سکھی ساتھ نصیب کرے. اور کشمیر، غزہ کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان ان کو کیسے بھول سکتے ہیں جو سیلاب کی آزمائش میں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی اور رحم کا معاملہ کرے. آمین ثم آمین. ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں. دعائیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کی ہوئی دعا دوسرے کے حق میں قبول کر لیتا ہے. تو سب کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں. ہمارے چینل کو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. گپ شپ ود آمنہ خان.